بنی اسرائیل کے کچھ افراد ایک وادی میں کھڑے تھے اور اوپر طور پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد پہاڑی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں میں پتھر کے دو بڑے بڑے تختیاں لیے نیچے آتے دکھائی دیے۔ اسرائیلی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ نیچے آتے ہی اس تختیوں کو زمین پر زور سے دے مارتے ہیں اور تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر آپ غصے اور جلال کی حالت میں آگے بڑھتے ہیں۔ سامنے آپ کے بھائی حضرت ہارون کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی کو اور انہیں زور سے جھنجھوڑ کر زمین پر گرا دیا اور کہا کہ اے ہارون، یہ میری غیر حاضری میں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے مطابق اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کو فضیلت عطا کی۔ عمران بن قحات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے پرپوتے تھے۔ روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان چھوڑ کر مصر آ گئے تھے، لیکن لاوی کی کچھ اولادیں کنعان میں ہی رہیں، لہذا عمران بھی البتہ ایک اسرائیلی تھے، لیکن ان کی زندگی کنعان میں ہی گزری۔ پھر 40 برس کی عمر میں آپ مصر آ گئے اور اپنی چچا زاد یوکابد سے شادی کر لی۔ عمران کی زوجہ یوکابد ایک نیک صفت خاتون تھی۔ کچھ عرصے بعد آپ کے بدن سے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ہارون رکھا۔ لفظ ہارون کے معنی عبرانی زبان میں سرخ اور سفید کے ہیں۔ چونکہ آپ بہت خوبصورت اور گورے رنگت والے شخص تھے، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کا نام ہارون رکھا تھا۔ جب ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت مصر میں سیٹی اول نامی فرعون کی حکومت تھی، جو بڑا ہی ظالم اور جابر حکمراں تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو مصر میں غلام بنا رکھا تھا اور ان سے ذلت آمیز اور سخت کام کروایا کرتا۔ انہی حالات میں حضرت ہارون نے پرورش پائی۔ آپ نہایت ہی بلند قامت، خوبصورت، نرم مزاج، بردبار، صاف اور میٹھی گفتگو کرنے والے اور پرسکون لہجے میں بات کرنے والے انسان تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نہایت ہی خوش شکل، لمبے چوڑے تھے۔ آپ کا رنگ سفید اور بال گھنگریلے تھے اور آپ بلا شبہ اپنے قبیلے کے سب سے خوبصورت مرد تھے۔ حضرت ہارون کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ کچھ احادیث، اقوال صحابہ، عبرانی بائبل اور نئے عہد نامہ میں حضرت ہارون کے نبوت کے بعد کے حالات زندگی لکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون موسیٰ سے 3 برس بڑے تھے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ حورب کے پہاڑی پر بکریاں چرا رہے تھے، تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا اور انہیں اپنا نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تاکہ وہ فرعون کو ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کرے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروائیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی اور آپ ابتدا میں بہت پریشان ہوئے۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں بھی کافی دشواری ہوتی تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ ہکلا کر بولا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا زور بازو اور مددگار بنا دے اور انہیں بھی نبوت عطا کرے تاکہ میرے لیے میرا کام آسان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول کر لی اور اس طرح حضرت موسیٰ کی سفارش سے آپ کے بھائی ہارون بھی نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ انجیل مقدس کے مطابق خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو خدا کا پیغام اور ہارون تیری زبان ہوگا، اور خداوند خود دونوں بھائیوں کا حامی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگل کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنے بھائی اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو وہ تمام باتیں بتائیں جو حورب کے پہاڑی پر خدا نے انہیں کہا تھا، اور پھر دونوں حضرات فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے تاکہ اسے خدا کا پیغام سنائیں۔
उन्होंने फिरौन से कहा कि तू खुदाई के झूठे दावेदारी से बाज आ जा और उस अजीम खुदा की परस्तिश कर जिसने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की है, और बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करके उन्हें आज़ाद कर दे। लेकिन फिरौन पैगाम हक को मानने से मुनकिर हो गया और कहने लगा कि अगर तुम वाकई खुदा की तरफ से भेजे गए हो तो कोई मुआजिज़ा दिखाओ। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर मारा और वो सांप में तब्दील हो गया। लेकिन फिरौन उन वाज़ेह निशानियों को देखकर भी ईमान न लाया और कहने लगा कि ये तो महज जादू है। लेकिन ये मुआजिज़ा देखकर फिरौन के दरबार में मौजूद जादूगर इस्लाम ले आए और तमाम लोग हज़रत मूसा और हारून के अच्छे औसाफ के साथ जिक्र करने लगे। इस तरह पूरे मिस्र में मूसा व हारून के चर्चे होने लगे। इस पर फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम और ज़्यादा बढ़ा दिया। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत मूसा को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा व हारून बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए और दरियाए किल्जिम पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि जब आपने अपनी लाठी को समुंदर पर मारा और समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और बीच से एक रास्ता निकल आया। इस तरह बनी इसराइल दरिया पार करके सरजमीन किनान में पहुंच गई और वादी तिया में पड़ाव डाला। इन तमाम वाक़यात के दौरान हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही रहे। हज़रत हारून एक बासलाहियत मुकर्रिर थे और अक्सर हज़रत मूसा के लिए बोला करते थे। वो बड़ी हद तक बनी इसराइल को इबादत के तरीके सिखाने के ज़िम्मेदार थे। अब वो वक्त आया जब खालिक़े कायनात ने बनी इसराइल को एक बाज़ाब्ता शरीयत देने का फ़ैसला किया। लिहाजा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सीना पर बुलाया ताकि उन्हें तौरेत की आयतें और ख़ास अहकामात अता करें। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाने लगे तो बनी इसराइल को जमा किया और फरमाया कि खुदा ने मुझे पूरे 30 दिनों के लिए तलब किया है, इसलिए मेरी गैर हाज़िरी में मेरे भाई हारून तुम्हारे पास मौजूद हैं। ये तुम्हारे निगरान और मेरे खलीफा व जानशीन हैं। अहादीस रसूल के मुताबिक पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम अली की निस्बत को हज़रत मूसा के साथ हारून की निस्बत से तशबीह दी गई है, क्योंकि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब कभी कहीं जाते तो हारून को अपनी जगह उम्मत का जिम्मेदार बनाकर जाते, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक में जाते हुए जब अपने चचाजाद भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम को मदीना में ही रहने को कहा तो हज़रत अली ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मुझे यहाँ क्यों छोड़े जाते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि ए अली, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि खुदा ने तुमको मुझसे वही निस्बत दी है जो हारून को मूसा से थी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपनी परवरदिगार से राज व न्याज में मसरूफ़ थे तो बनी इसराइल के दरमियान एक वाक़या पेश आया। दरअसल हज़रत मूसा को कोहे तूर पर गए 30 दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और इधर बनी इसराइल के दरमियान फितनों ने जन्म ले लिया। बनी इसराइल का एक शख्स जिसका नाम सामरी था, उसने यहूदियों से तमाम सोने के जेवरात लेकर उसे भट्टी में पिघलाया और कदीम मिस्री जादू के इस्तेमाल से उसका एक बछड़ा बना दिया जो एक जिंदा बछड़े की तरह आवाज़ निकाला करता था। उसने बनी इसराइल को गुमराह किया और कहने लगा कि मूसा अपने खुदा को हमारे पास भूल कर चले गए हैं और वहाँ जाकर वादियों में खुदा को तलाश कर रहे हैं, जबकि खुदा तो हमारे पास है। सामरी ने इसराइलियों को तरगीब दी कि वो इस बछड़े की पूजा करें, लिहाजा इसराइली उसकी बातों में आकर इस शिर्क में पड़ गए। जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा तो लोगों से फरमाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हज़रत हारून की बातों को मानने से इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दी। चूँकि हज़रत हारून नरम तबीयत के मालिक थे और आपके मिजाज में हज़रत मूसा की तरह शिद्दत और रौब नहीं था, लिहाजा आप इसराइलियों को इस कुफ्र से रोकने में नाकाम हो गए।
जब हजरत मूसा 40 दिनों के बाद तूर से वापस नीचे आए और अपनी कौम को बछड़े की इबादत करते हुए पाया तो इस कदर गजबनाक हुए कि गुस्से में उन तख्तियों को जमीन पर दे मारा और उन्हें तोड़ दिया जिसमें खुदावंद ने उन्हें तौरेत के अहकाम लिख कर दिए थे। हजरत मूसा इस बात पर शदीद गजबनाक हुए कि उन्होंने अपने भाई हारून को जिस काम पर मुकर्रर किया था उन्होंने उसे पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम नहीं दिया है। चूंकि हजरत मूसा जलाली तबीयत के मालिक थे इसलिए सख्त जोश व गज़ब में आकर उन्होंने हजरत हारून की दाढ़ी और सर पकड़कर उन्हें झंझोड़ना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ए हारून, जब तुमने उन्हें गौशाला परस्ती करते देखा तो उन्हें इस कुफ्र से क्यों न रोका? क्या मैंने इसलिए तुम्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया था? तुमने अपनी जिम्मेदारी को ये किस तरह निभाया है? इस पर हारून अलैहिस्सलाम ने सफाई देते हुए कहा कि ए मेरे भाई, कौम ने मुझे कमज़ोर ख्याल किया और मेरी जान के दुश्मन हो गए। मैंने कोई कोताही नहीं बरती, अलबत्ता मैं कमज़ोर पड़ गया और उन पर गालिब ना आ सका, लेकिन मैंने उनकी इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश की। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि बनी इसराइल इस कुफ्र व शिर्क के खुद जिम्मेदार हैं और असल मुजरिम हजरत हारून नहीं बल्कि सामरी है जिसने इसराइलियों को गुमराह किया है, जबकि हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर न छोड़ी। चुनांचा हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर। फिर हजरत मूसा ने हुक्म दिया कि गौशाला परस्ती करने वाले लोग सामरी की तरफ हो जाएं और जो लोग अब भी मूसा के रब पर ईमान रखते हैं या तौबा करना चाहते हैं वो मेरी तरफ आ जाएं। लिहाजा इसराइली दो ग्रोह में बढ़ गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से गौशाला परस्ती करने वालों को मौत की सज़ा दी गई। बनी इसराइल अपनी गुनाहों और नाशुक्री की वजह से सालों तक वादी तिया में भटकते रहे। इस दौरान हजरत हारून इसराइलियों को हर दिन नसीहत करते, उन्हें तौरेत का पैगाम सुनाते और उन्हें खुदा के 10 मखसूस अहकाम यानी 10 कमांडमेंट्स की तालीम देते। इस तरह हजरत मूसा की ज़िंदगी में ही हजरत हारून को न सिर्फ एक नबी बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के तर्जुमान और इसराइलियों के रूहानी पेशवा और इमाम का दर्जा हासिल हो गया था और बनी इसराइल हजरत हारून की निहायत ही इज्जत और एहतराम किया करते थे। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तमाम वाक़यात हयात तकरीबन एक साथ ही गुजरी हैं। यही वजह है कि कुरान मजीद और दूसरे आसमानी किताबों में आप दोनों भाइयों का नाम एक साथ आया है। हजरत हारून ने 123 साल की उम्र पाई थी, लेकिन आपकी वफ़ात मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हो गई थी। हजरत हारून की वफ़ात का वाक़या भी निहायत ही अजीब व गरीब है, जो मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों और अक़वाल में दर्ज है, जिसके मुताबिक एक दफ़ा खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने भाई हारून के साथ कोहे तूर पर बुलाया। लिहाजा आप दोनों हजरात कोहे तूर के लिए रवाना हो गए। जब मूसा व हारून जबल हूर पर पहुंचे तो हजरत मूसा पर वही आई कि ए मूसा, अब हारून की मुद्दत उम्र ख़त्म हो गई है और वो अपने अजीज़ों से मिलने वाले हैं, लिहाजा उन्हें इस कोहे हूर पर रोक दो और उनके बेटे अल आज़ार को यहाँ बुलाकर हारून का लिबास उसे पहनाओ और उसे उनका जानशीन बना दो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। कुछ रिवायतों में आया है कि इंतकाल के वक्त हजरत हारून के पास उनके फर्जिंद शब्बर और शब्बीर मौजूद थे, जबकि कुछ तारीखी रिवायत बताती हैं कि हजरत हारून के 4 बेटे थे, जिनमें 2 बेटों का हजरत हारून की जिंदगी में ही इंतकाल हो गया था। हो सकता है कि अल आज़र शब्बर या शब्बीर ही में से किसी एक का नाम हो, जिसे हारून अलैहिस्सलाम ने कोहे हूर पर बुलाया था। हजरत हारून के उन 2 बेटों के मुताल्लिक एक मशहूर रिवायत है कि जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के यहाँ हसन व हुसैन की पैदाइश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्हें देखा और फिर उनका नाम रखा और फरमाया, मैंने हसन और हुसैन का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद शब्बर और शब्बीर के नाम पर रखे हैं।
बहरहाल मूसा व हारून जब कोहे हूर पर मौजूद थे, तब पहाड़ की बुलंदी पर से एक तख्त नमूदार हुआ, जिस पर हजरत हारून लेट गए और उनकी रूह कब्ज हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आए और अपनी कौम को हजरत हारून की वफात की खबर दी, तो बनी इसराइल हजरत मूसा पर ही बरहम हो गए और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने अपने भाई को इस बिना पर कत्ल कर दिया है कि हम उन्हें बहुत चाहते थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बनी इसराइल किस कदर सरकश कौम थी कि उन्होंने अपने ही उस पैगंबर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जिन्होंने उन्हें फिरौन की गुलामी से आज़ादी दिलवाई थी। बहरहाल उस वक्त आसमान से वही तख्त नाजिल हुआ जिस पर हजरत हारून की जसद मुबारक रखी हुई थी, और इस तरह बनी इसराइल को यकीन आया कि हजरत हारून की रूह कब्ज की गई है और वो अपनी मौत मरे हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात हजरत मूसा के लिए निहायत ही तकलीफदा था। भाई का गमे जुदाई हजरत मूसा में इस दर्जा था कि वो बेइंतहा रोए और गिरिया जारी किया। दूसरी तरफ बनी इसराइल भी हजरत हारून की वफात पर बहुत गमगीन थे और उन्होंने 30 दिनों तक कोहे हूर के दामन में हजरत हारून का गम मनाया। एक रिवायत के मुताबिक इंतकाल के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फरिश्ते उठाकर ले गए और उन्हें एक ऐसी जगह दफन कर दिया कि उनकी कब्र किसी को मालूम न हो सकी।